Good morning, class. Hope you all are fine. In yesterday's class, we have discussed about the fifth postulate given by Euclid, and I have given homework also. The homework was example 1 and example 2. So now let's see example 1. If A, B, and C are 3 points on a line and B lies between A and C, then prove that AB plus BC equals to AC. ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि 3 पॉइंट्स हैं ऑन अ सेम लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी. तो हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी होगा. सो फॉर दिस what we have to do, see here. So in the given figure shows that AC coincides with AB plus BC. कि अगर हम तो हमारी जो लाइन है that is like this. तो इसके बीच में B है. तो हम क्या देख रहे हैं कि जो AC है वो कौन साइड करेगा. अगर हम AB प्लस BC करेंगे तो डैट विल मेक AC ओनली, है ना. सो यूजिंग यूक्लिड्स एक्सियम 4, what Euclid's axiom 4 says that things which coincide with one another are equal to one another. ऐसी things जो एक दूसरे को coincide करती है, if we superimpose one over the another and their end points are same, so they coincide with one another and are equal to one another. So we can say that AB plus BC equals to AC. Okay. Now let us see example 2. Example 2 क्या कह रहा है? Prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment. कि equilateral triangle हम किसी भी एक given line segment पे बना सकते हैं. So how we can prove it? Suppose we are given line AB, line segment AB given है, which is having 2 end points. We all know line segment क्या होती है, जिसके 2 end points होते हैं. Now using Euclid's postulate 3, we know that कि you can draw a circle with point A as a center and AB as a radius. So we can draw a circle with any point and any radius. ठीक है. So suppose if we put the pointed end here and radius AB, if we draw a circle, अगर हम circle draw करते हैं, ठीक है. Similarly अगर हम B पे pointed end रखें and we'll take the same radius AB and we draw a circle, ठीक है. What do we find? कि they meet at some point, let us say C. तो वो दो सर्कल्स एक पॉइंट पर मीट करेंगे जो कि हमने कह दिया C. ए पर बनाएंगे तो हम ऐसे सर्कल पूरा शो कर सकते हैं. ऐसी बी से भी बनाएंगे तो वो सर्कल आप पूरा शो कर सकते हैं. तो हम ये देखेंगे कि दोनों सर्कल पॉइंट C पर मीट करेंगे. नाउ ड्रॉ द लाइन सेगमेंट AC. तो हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट बना ली दोनों AC एंड BC टू फॉर्म अ ट्राइंगल, जिससे कि एक ट्राइंगल बन गया. सो यू हैव टू प्रूव दैट इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इट मीन्स AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC. इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दिस. अब हम कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू AC होगा बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ऐसे हम कह सकते हैं AB इक्वल्स टू BC भी होगा बिकॉज दे आर ऑल्सो द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन से दैट कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC. Hence triangle ABC is an equilateral triangle. In this way we can say. Hope you all are understanding what I am saying to you. Okay. Now अब हम देखते हैं कि हमारा 5.1 में कौन कौन से क्वेश्चंस लेफ्ट हैं. 1 we have done, 2 we have done. We have to explain question number 3. Consider 2 postulates given below. अब यहाँ पे 2 postulates given हैं.
what are that postulates? Given any two distinct points A and B, दो distinct points, दो अलग अलग points हैं A और B, there exists the third point which is in between A and B. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है इसमें, let us see कि दो points हैं A and B और उनके बीच में एक और point है C. ठीक है, एंड द सेकेंड पोस्टुलेट जो उन्होंने दी है दैट इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. तो दो पॉइंट्स हैं और एक थर्ड पॉइंट है दैट इज नॉट ऑन द सेम लाइन. तो देयर एग्जिस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, कि तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पर नहीं हैं. आगे वो क्या कहते हैं, डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स. क्या इनमें कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं? तो हैं, जैसे पॉइंट्स इज़ नॉट डिफाइंड हेयर, डिस्टिंक्ट पॉइंट इज़ नॉट डिफाइंड हेयर पॉइंट्स, line. So there are many indefined terms. So what we will say, and we don't have to define that terms, what we will say, yes, these postulates contain many undefined terms, only we have to write. Next question जो कह रहे हैं वो, are these postulates consistent? क्या ये postulate consistent है? Consistent means are they having the logical solution? क्या उसका कोई logical कोई मतलब है? Yes. अगर हम ये कह दें कि गिवन, जैसे इन्होंने कहा है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, देयर एग्जिस्ट द थर्ड पॉइंट विच इज़ इन बिटवीन, तो ये हो सकता है, इट इज़ ट्रू. सो इट इज़ लॉजिकल, इट कैन बी. एंड सेकेंड वाला देखें, अगर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, 3 पॉइंट्स हैं एंड दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. सो are these postulates consistent? So what we'll say, yes, the given postulates are consistent because they refer to two different situation. अब दोनों एक ही situation तो नहीं है, दोनों अलग अलग हैं. So that is why they are consistent, because ये दोनों अलग अलग situations को refer कर रही हैं. Next is, do they follow from Euclid's postulate? क्या ये यूक्लिड की postulates को follow कर रही हैं? आपने सारी यूक्लिड की पोस्टुलेट्स पढ़ी हैं, क्या ये उनको कोई फॉलो कर रही है? नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, दे फॉलो एक्सियम 5.1. एक्सियम 5.1 आई हैव टोल्ड यू ना, वी हैव यूज्ड इट इन दिस, इन पोस्टुलेट 1. गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम. तो ये किसको फॉलो कर रही है कि कोई भी दो पॉइंट्स हैं, उनसे एक यूनिक लाइन ही पास हो सकती है. अगर हम ए सी ले लें, ए और सी दो पॉइंट, तो इससे एक यूनिक लाइन पास होगी. अगर हम ए और बी ले लें तो इससे एक यूनिक लाइन पास होगी. तो अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो देयर कैन बी 3 पॉइंट्स ऑल्सो, कि उससे भी यूनिक लाइन पास होगी. जैसे हम ये ले लें, अगर हम ए और सी से ज्वाइन करें तो भी एक ही लाइन पास होगी. सो दे फॉलो एक्सियम 5.1. व्हाट इज़ 5.1? Given two distinct points, there is a unique line that passes through them. Okay. Now, एक और क्वेश्चन जो हमने नहीं सॉल्व करा अभी, that is question number 4. Question number 4 देख लेते हैं अब हम. Question 4 is, if a point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to half AB. अब ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं. 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी जो है वो दो पॉइंट्स ए और बी के बीच में लाया करता है, सच डैट, जैसे क्या कह रहे हैं, सच डैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, जो ए सी लेंथ है वो बी सी के इक्वल है. नाउ देन प्रूव डैट, अब हमें प्रूव करना है कि ए सी जो होगा वो हाफ ए बी होगा. तो हम वैसे ही लिखते हैं, जब भी हमें कुछ प्रूव करना होता है वी हैव टू फॉलो द 3 स्टेप्स. फर्स्ट इज गिवन, वी हैव टू राइट द गिवन. गिवन क्या है? ए सी इक्वल्स टू बी सी. टू प्रूव हमें करना है कि ए सी जो है वो हाफ ऑफ ए बी है. अब हम पूरे ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए सी प्लस बी सी, ये लिख दिया हमने. एंड वी नो डैट ए सी जो है बी सी के इक्वल है, तो हमने ए सी की जगह क्या लिख दिया? बी सी की जगह हमने ए सी लिख दिया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट ए सी इक्वल्स टू हाफ ए बी ना. सो हमने बी सी की जगह ए सी लिख दिया. सो ए बी आ गया हमारा 2AC. तो ए सी क्या आ जाएगा?
ये इधर जाके 1 हो जाएगा, तो इट इज़ हाफ AB, hence proved. I think all clear to you? Everything is clear? Okay. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB. पॉइंट C को AB का मिड पॉइंट बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में. देन प्रूव दैट एवरी लाइन हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. तो हमें प्रूव करना है कि हर लाइन का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है. हमें गिवन है कि AC इक्वल्स टू हाफ AB है, दैट इज C इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB. तो हम इससे ये कह सकते हैं कि AC इक्वल्स टू हाफ AB. अब हमें प्रूफ करना है कि एक लाइन का एक ही मिड पॉइंट हो सकता है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका कॉन्ट्रडिक्शन सपोज कर लेते हैं कि सपोज एक पॉइंट D और है जो कि इसका मिड पॉइंट है. तो व्हाट विल सपोज, लेट D इज़ अनदर मिड पॉइंट ऑफ AB. कि D AB का एक और मिड पॉइंट है. अगर D मिड पॉइंट है तो हम क्या कह सकते हैं कि AD विल बी हाफ ऑफ AB. बट हमें क्या गिवन है, बट AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB गिवन है. तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह देंगे कि AC इक्वल्स टू AD. मतलब AC जो है वो AD के इक्वल होगा. वो तभी होगा अगर ये D पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड करेगा, अगर ये D पॉइंट भी यहीं पर होगा. तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट AC इक्वल्स टू AD. सो इट मीन्स C and D विल कोइंसाइड. अगर कोइंसाइड करेगा इट मीन्स देयर इज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट फॉर एवरी लाइन सेगमेंट. ठीक है. और क्वेश्चन 6 वी हैव ऑलरेडी डन and question 7 also we have done. So first exercise is complete. So tomorrow we will discuss equivalent versions of Euclid's fifth postulate. So thank you and have a nice day.